Hi students, we are going to start with your new English chapter, that is your chapter number 2, a little grain of gold. A little means small, grain means dana, chota sa of gold, that is a very precious metal and it is very costly. So it is a poem of your book. Now, so in this chapter, so see the picture. So this is the picture, okay. This you can see that a chariot is standing over here. So what is a chariot? It is a vehicle, it is a kind of vehicle with the two wheels, ठीक है, and who is run by the horse, जो कि horse चलाता है वन या वन से ज़्यादा. एंड ओपन व्हीकल, ये एक ओपन व्हीकल होता है, ओपन दैट देयर इज़ नो टेरेस ऑन दैट व्हीकल विथ टू व्हील्स, इसमें टू व्हील्स होते हैं एंड दैट इज पुल्ड बाय अ हॉर्स, ठीक है, दैट इज अ chariot. So now let's start with your chapter. I had gone a begging from door to door in the village path. What does it means? मैं गया था for begging from door to door. एक दरवाजे से दूसरे डोर तक क्या करने, बेग करने गया था, ठीक है. इन द विलेज पाथ, पाथ मीन्स द पाथ, द रास्ता वेयर ऑन विच वी कैन मूव, ठीक है. Village path, when my golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream. जब मैं उस रास्ते से जा रहा था, when I was going on that way on a village path, so what I saw a beautiful chariot I just explained you, it is a kind of a vehicle, ठीक है. And it was like a gorgeous dream, it was a beautiful dream, gorgeous means beautiful dream. And I wondered, I was thinking, wondered means I was thinking, who was this king of all kings, that जो इस पे बैठा है वो कौन है. He was looking like the king of all the kings, सारे राजाओं का जो राजा होता है, that is called king of all kings. My hopes rose high, जो मेरी hopes थी that became more high, वो और ज़्यादा बढ़ गई. And me thought my evil days were at the end, and I was thinking that my worst days are now at the end, यानी कि जो मेरे बुरे दिन हैं वो अब एंड में हैं, ख़त्म होने को आए हैं. And I stood waiting for days were. So after that, when I saw that beautiful glance, when I saw that beautiful chariot, so मुझे कैसा लगा कि अब मेरे बुरे दिन finish होने वाले हैं, they are at the end. And I stood waiting for alms to be given unasked, और मैं वेट कर रहा था कि मुझसे बिना पूछे मुझे आर्म्स दिए जाएंगे. ALMS, what does it mean? Alms means that is the money, cloth and the food which is given to the poor people, ठीक है. उसे लग रहा था कि मुझे आर्म्स दिए जाएंगे by the king of all the kings, ठीक है, और मुझसे बिना पूछे मुझे वेल्थ दी जाएगी, दैट इज़ मनी. स्कैटर्ड ऑन ऑल द साइड इन द डस्ट, जितना भी डस्ट था आसपास, स्कैटर्ड मीन्स बिखरा हुआ. द डस्ट, जितना भी डस्ट जो था स्कैटर्ड था व्हीकल के चलने से, उसकी उतना मुझे क्या मिलेगा, वेल्थ, मनी, उतनी ज़्यादा मुझे मनी मिलेगी. Now what happened next? The chariot stopped where I stood. जहाँ पर भी मैं खड़ा था वहाँ पर क्या हुआ, chariot, the vehicle stopped. The glance fell on me and thou camest down with a smile. What does it mean? A quick look was there. जब मैंने ध्यान से देखा, quick look, ठीक है, अच्छे से एकदम से देखा, तो क्या हुआ, वहाँ से वो जो किंग ऑफ ऑल किंग्स थे वो मेरे पास उतर कर आए, वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, जहाँ पर मैं खड़ा था. ऑन विद अ स्माइल, एंड देयर वॉज अ स्माइल ऑन हिज फेस. ऑन हुज फेस? किंग ऑफ ऑल किंग्स के फेस पर एक स्माइल थी.
I felt that the luck of my life had come at last. मुझे कैसा फील हुआ? I was feeling कि जो लाइफ का मेरी लक है, मतलब जो अच्छी लाइफ है, जो मेरा लक है, वो अब चल पड़ा है और वो आ चुका है मेरे पास. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास किंग ऑफ ऑल किंग्स, जिसको हम गॉड भी बोल सकते हैं, वो चलकर मेरे पास आए थे. Then of a sudden though, did hold out thy hand and say, what have you to give me? यानी कि so there are the words used in this poem, thy, though. What is this? This is the meaning. It is a second form of saying you. ठीक है, तो क्या हुआ? वो उतर कर आए और उन्होंने मुझसे ही पूछ लिया कि आपके पास मुझे देने के लिए क्या है. सो क्या हुआ? अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समवन, आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कोई चीज़ देंगे वो आके, पर उसकी जगह क्या होता है, वो आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सामने वाला कि आप उन्हें कुछ चीज़ दोगे, तो आपको कैसा फील होगा? यू विल बी इन अ शॉक, यू विल बी शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है, मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था, ये मुझसे क्यों मांग रहे हैं. What a kingy jest was it to open the palm to a beggar to beg. यानी कि वो क्या सोचते हैं? What a kingy jest. Jest means joke. What a joke it is कि वो अपने palm, this is your palm, ठीक है, this is your complete hand and this area is known as palm. So वो कहते हैं वो अपने पाम जो है दिखा के बेगर की तरह, ठीक है, वो एक बेगर से ही बेग कर रहे हैं. सो आई वॉज कन्फ्यूज एंड स्टैंड अनडिसाइडेड. मैं क्या हो गया? कन्फ्यूज हो गया. एंड आई वॉज स्टैंडिंग अनडिसाइडेड, दैट मैं आई वॉज अनएबल टू डिसाइड दैट मैं अब इन्हें क्या दूँ. एंड देन उसके बाद फ्रॉम माई वॉलेट, वॉलेट इज़ अ your purse where you keep the money. It is a small pouch where you keep your money. So then from my wallet, अपने wallet में से I slowly, धीरे से, took out the least little grain. मैंने क्या निकाला? least, सबसे छोटा, little grain of corn. corn का एक grain निकाला and gave it to thee. उनको मैंने दे दिया. नाउ अब क्या होता है? बट हाउ ग्रेट माई सरप्राइज व्हेन एट द डेज एंड. लेकिन मैं एकदम सरप्राइज हो गया, शॉक हो गया. मतलब जब मैंने व्हेन एट द डेज एंड, एंड ऑफ द डे, जब दिन ख़त्म हो गया, आई एम्प्टीड माई बैग, जब मैंने अपना बैग खाली किया, एम्प्टी किया. ऑन द फ्लोर, कहाँ पर किया? फ्लोर पर. जब मैंने अपना बैग एम्प्टी किया तो क्या हुआ? आई वॉज सरप्राइज्ड. मुझे सरप्राइज मिला या काइंड ऑफ अ शॉक मिला. टू फाइंड अ लीस्ट लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड अमंग द पुअर हीप. उस हीप में मुझे क्या दिखा? छोटा सा ही गोल्ड का ग्रेन दिखा. उन्होंने उसे कॉर्न का ग्रेन दिया था और उसके बदले में जब उसने रात को देखा तो क्या दिखा कि वो क्या है? छोटा सा गोल्ड का ग्रेन है. ठीक है. आई बिटरली वेप्ट, यानी कि बिटरली मीन्स फीलिंग ऑफ सैडनेस और एंगर. ठीक है, मुझे क्या आया? गुस्सा भी आया और मैं सैड भी हुआ कि मैंने अगर उन्हें पूरे जो है जितने मेरे पास ग्रेन थे, मैंने अगर उन्हें गॉड को वो सारे दे दिए होते तो मेरे पास फुल ग्रेन ऑफ गोल्ड का एक बैग होता. बट क्योंकि मैंने सिर्फ लिटिल ग्रेन दिया था तो मुझे उसके बदले में क्या मिला? अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड. छोटा सा ग्रेन मिला. किसका? गोल्ड का. सो मुझे क्या? I wished that I had the heart to give them all.
तो वो क्या कहते हैं, आई विश, मैं विश करता हूँ कि काश मैंने उन्हें जो है जितने मेरे पास थे सारे दिए होते। अगर सारे दिए होते तो मुझे वो सारे जो है उसके बदले में गोल्ड कॉइन्स मिल जाते, गोल्ड ग्रेन्स मिल जाते। सो इससे इसका चैप्टर का मीनिंग बहुत सिंपल है, अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड। अगर आप अच्छे से किसी को दोगे तो भगवान भी आपको अच्छे से देगा। सो यू शुड बी ऑलवेज ग्रेट हार्टेड, आपको आपका दिल बड़ा रखना चाहिए और सबकी हेल्प करनी चाहिए। सो दिस वॉज द ओनली पोएम। ठीक है, आई विल बी शेयरिंग द वर्कशीट विद यू and the difficult words mentioned in this chapter and the PDF also. So you have to complete the worksheet and the back exercise, and you have to submit the question and answers to me in my personal chat. Thank you, class.